بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ 23 سال کی جوان سالہ زویا بستر مرگ پر پڑی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کینسر نے زویا کو پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ ایک تو غریبی، اوپر سے کینسر جیسے مزی مرض نے صرف زویا کا شکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ زویا کا شوہر اپنے 2 سالہ بیٹے کو لیے زویا کی چارپائی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا 2 سالہ بچہ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے کبھی باپ کے آنسو صاف کرتا تو کبھی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا۔ زویا نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے بوسہ دیتے ہوئے اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ کیسر، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ کیسر نے ہمت جمع کی اور بولا، زویا، میں تمہارے بغیر جی کر کیا کروں گا؟ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی لیکن اللہ نے میری ایک نہ سنی۔ تم ہی سن لو زویا، اوپر والے کو منا لو اور میرے پاس لوٹ آؤ۔ زویا نے کہا، کیسر، تم ہر وقت مجھے تنگ کرتے تھے کہ میں دوسری ڈھونڈ رہا ہوں، دیکھو اللہ نے تمہاری سن لی۔ کیسر روتے ہوئے بولا، اب نہیں کہوں گا، وعدہ کرتا ہوں، ساری زندگی نہیں کہوں گا۔ اتنے میں بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں آئی۔ انہیں دیکھتے ہی کیسر کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ بولی، ڈاکٹر صاحب پلیز چیک کریں، یہ میری ملازمہ ہے۔ ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ گیا اور زویا کو چیک کرنے لگا۔ کیسر بولا، ڈاکٹر صاحب زویا ٹھیک ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اٹھا اور بیگم صاحبہ سے کہا، میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر اور بیگم صاحبہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیسر کا 2 سالہ بیٹا انس اس کی گود سے اتر کر ماں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ ماں کے چہرے پر رکھ دیا۔ زویا نے بڑے پیار سے بیٹے کو اٹھایا اور اوپر سلا لیا۔ کیسر زویا کے پاس جا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کی تو زویا بولی، رہنے دو کیسر، مجھے سکون مل رہا ہے۔ کیسر بولا، تم تھک جاؤ گی زویا۔ زویا نے کہا، نہیں تھکتی کیسر، میرے بیٹے کو میرے قریب رہنے دو۔ یہ کہہ کر زویا نے آنکھیں بند کر لی۔ کیسر نے زویا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہو۔ کیسر بولا، زویا اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ زویا سو چکی تھی۔ تھوڑی دیر گزر گئی۔ کیسر زویا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اللہ سے اس کی صحت یابی کی دعائیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر اور گزری کہ اچانک زویا کا ہاتھ ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس کی کیسر کے ہاتھ پر گرفت کم ہونے لگی۔ کیسر نے سمجھا کہ شاید وہ سو چکی ہے۔ اس نے بیٹے کو زویا کے اوپر سے اٹھایا تاکہ وہ سکون سے سو سکے، لیکن اسی لمحے کیسر کو زویا کی دھڑکن محسوس نہ ہوئی۔ کیسر نے جلدی سے بیٹے کو کرسی پر بٹھایا اور زویا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ملنے لگا اور بولا، زویا تم سو رہی ہو؟ مگر اسے پلٹ کر کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا۔ کیسر نے زویا کی نبض چیک کی۔ اس کی نبض چلنا رک گئی تھی۔ کیسر زور سے چلایا، آنکھیں کھولو زویا، اٹھو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ اتنے میں کیسر کا بیٹا کرسی سے اترا اور ماں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کو ماں کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولا، امی اٹھ جائیں، امی اٹھ جائیں۔ لیکن زویا گہری نیند سو چکی تھی۔ دنیا کی بن بناہٹوں سے آزاد ہو کر وہ اگلے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ معصوم بیٹے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیسر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر مالکن کمرے میں آئی۔ زویا کا بے حس و حرکت جسم دیکھ کر سمجھ گئی کہ زویا اب دنیا میں نہیں رہی۔ مالکن نے کیسر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، صبر کرو کیسر، زویا کی زندگی بھی اتنی تھی، ہم سب اللہ کی مرضی کے آگے بے بس ہیں۔ دیکھو تمہارا بیٹا پریشان ہو رہا ہے، تم نے اس کے لیے جینا ہے کیسر، ہمت کرو۔ کیسر اور زویا دونوں ہی یتیم تھے۔ اس بنگلے میں دونوں پچھلے 13 سال سے نوکری کر رہے تھے۔ بنگلے کا مالک طارق اوان فیکٹری کا مالک تھا۔ بنگلے کی مالکن یعنی طارق کی بیوی حسینہ بیگم شہر کے ایک بڑے وکیل کی بیٹی تھی۔ حسینہ بیگم کے 4 بچے تھے۔ 2 بیٹے باہر ملک اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے، جبکہ ایک بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو دوسری بیٹی کالج میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کیسر اور زویا ہم عمر تھے۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں وکیل صاحب دونوں کو یتیم خانے سے لے کر آئے تھے۔
5 साल उन्होंने दोनों को अपने पास रखा। उसके बाद वकील साहब ने दोनों मुलाजिम अपनी बेटी हसीना बेगम को तोहफे में दे दिए। कैसर और जोया एक साथ पले बड़े थे। दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। उनकी मोहब्बत को देखते हुए 18 साल की उम्र में तारिक साहब ने जोया का कैसर से निकाह करवा दिया और दोनों रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। शादी के 2 साल बाद अनस पैदा हुआ तो दोनों की जिंदगी में बहार आ गई। लेकिन बहार की उम्र कम होती है। जोया बीमार रहने लगी। आखिर डॉक्टर ने जोया को हड्डियों का कैंसर बता दिया। जोया 3 साल उस मूजी मर्ज से लड़ती रही, लेकिन वो नाजुक लड़की कब तक उस बीमारी से लड़ती। एक दिन अपने खालिक हकीकी से जा मिली। यतीम खाने में पलने वाला कैसर एक बार फिर अकेला हो गया। 2 साल का मासूम बेटा बार बार माँ के पास जाने के लिए रोता तो कैसर तड़प कर उसे सीने से लगा लेता। आज जोया को दुनिया से गए 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन कैसर अब तक वहीं खड़ा था जहां वो जोया से बिछड़ा था। मजनू जैसी हालत बनाए कैसर, जो अंदर से जोया के साथ ही मर चुका था, लेकिन वो सांसें सिर्फ अपने बेटे के लिए ले रहा था। अनस 5 साल का हो चुका था। कैसर ने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो दिन भर खामोशी से बंगले के कामकाज में लगा रहता। घर के दूसरे मुलाजमीन भी उसकी हालत से काफ़ी परेशान थे। जोया को दुनिया से गए 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन कैसर जोया के गम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। बंगले का खानसमा गेट पर चौकीदार के साथ खड़े कोई ज़रूरी बात कर रहा था, जबकि कैसर लान में आलती पालती मारे बैठा गहरी सोचों में गुम था। खानसमा ने कैसर पर गहरी नज़र डाली और बोला, रशीद भाई, जब से जोया दुनिया से गई है कैसर उसके गम से ही नहीं निकल पा रहा। कभी कभी मुझे लगता है कि उसका 5 साल का बेटा है, कि कैसर को कुछ हो गया तो उसके बच्चे का क्या बनेगा। चौकीदार बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं मुत्तईद बार उसको समझा चुका हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेचारा खुद भी यतीम खाने में पला बड़ा था। इसने तो घर का सुख ही पहली बार देखा था। ये सुनकर खानसमा कैसर की तरफ चल पड़े। वो कैसर के पास चंद लम्हे खड़े उसे देखते रहे, फिर बोले, कैसर, हम सब जानते हैं कि तुम जोया बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन आगे अल्लाह की मर्जी, हमारा बस तो नहीं चल सकता। तो क्या तुम अब मोहब्बत में खुद को फना कर लोगे? आगे बढ़ो बेटे। कैसर बोला, कौन कहता है मर्द मोहब्बत नहीं करता? उसके दिल में अभी आतिश फिशां फटता है जो उसके वजूद को जलाकर ख़त्म कर देता है। कौन कहता है कि मर्द को तकलीफ़ नहीं होती? तकलीफ़ उसे भी होती है, लेकिन वो अपने अंदर उठने वाले धुएं को अंदर ही रोक लेता है। पहाड़ की तरह मजबूत नज़र आने वाले मर्द को भी मोहब्बत घिन की तरह चाट सकती है। खानसमा ने कहा, तुम्हें पहाड़ की तरह मजबूत बनना पड़ेगा बेटे, अपने लिए ना सही बेटे के लिए। वो भी तो जोया बेटी की निशानी है। तुम्हें उसकी हिफाजत करनी है, चाहे मन मार कर ही करनी पड़े, मगर करनी है। ये कहकर खानसमा अंदर चले गए। कैसर की आंखों से 2 आंसू टपके और उसकी झोली में आ गिरे। दिन उसी तरह गुजर रहे थे। हर आने वाला दिन कैसर के जख्मों पर एक नया मरहम रखता। वो चंद लम्हों के लिए मुस्कुरा देता। आज भी ऐसा ही दिन था। अनस नर्सरी क्लास में पढ़ रहा था। आज उसका रिजल्ट आना था। उसके टीचर ने बताया कि अनस ज़रूर फर्स्ट पोजीशन लेगा। इसी खुशी में कैसर बेटे के साथ उसके स्कूल जा रहा था। बेटे का रिजल्ट आया। अनस ने क्लास में पहली पोजीशन ली। उसका बेटा स्कूल के ज़हीन स्टूडेंट्स में से एक था। रिजल्ट फंक्शन के बाद कैसर बेटे को लेकर घर पहुंचा। आज 4 साल बाद उसे पहली बार किसी ने इतना खुश देखा। बंगले के सारे मुलाजमीन कैसर की खुशी में खुश हो रहे थे। कैसर ने खानसमा से कहा, चचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। खानसमा बोला, मिठाई खिलाओगे तो खुशी का मज़ा आएगा। कैसर बोला, बिल्कुल चचा, आज मिठाई नहीं खिलाऊंगा तो कब खिलाऊंगा? तुम मेरे शहजादे को संभालो, मैं अभी आया और मिठाई लेकर आया। अनस बोला, बाबा, मैं बर्फ़ी खाऊंगा। कैसर बेटे को प्यार करते हुए बोला, ओ, मैं अपने शहजादे के लिए बर्फ़ी लेकर आऊँगा। ये कहकर कैसर बर्फ़ी लेने के लिए बंगले से निकल गया। कैसर ने बर्फ़ी खरीदी। वो हाथ में 2 किलो मिठाई का डब्बा पकड़े खुशी खुशी बंगले की तरफ पैदल चला जा रहा था कि अचानक एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज़ोर से लगी कि कैसर उसी वक्त गिरा और शदीद जख्मी हो गया। टक्कर मारने वाला तेज़ी से मौके से फरार हो गया। यह देखकर इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए। उनमें से एक शख्स ने कैसर को पहचान लिया
लोगों ने उसे उसी वक्त अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कैसर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। खनसमा जो किचन के कामों में मसरूफ थे, फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया, अस्पताल से ही फ़ोन था। जैसे ही उन्हें कैसर के बारे में पता चला, वो फ़ौरन अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने से डॉक्टर से मुलाकात हुई, मगर डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया कि मौके पर बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हम उन्हें नहीं बचा सके। खनसमा ने एम्बुलेंस करवाई और कैसर की मैयत लेकर बंगले पर पहुंच गए। मैं चंद दिन पहले ही बंगले पर बेगम साहिबा की मुलाजमा की हैसियत से आई थी। बेगम साहिबा ने ख़ास तौर पर मुझे अपने कामों के लिए रखा था। मेरा नाम रेशमा है, मेरी 3 बेटियां हैं। शोहर लापरवाह आदमी है, दिहाड़ी मिले तो लगा लेता है, वरना परवाह भी नहीं करता। बेगम साहिबा घर पर नहीं थी। अनस मेरे साथ खेल रहा था। वो कई बार मुझसे पूछ चुका था, खाला बाबा मेरी बर्फी लेकर कब आएंगे, लेकिन उसे क्या इल्म था कि आज उसने अपने बाप को भी खो दिया। कैसर की मैयत घर पहुंची तो हर मुलाजिम की आंख अश्कबार थी। अनस अपने बाबा से लिपट कर रो रहा था। उसे इल्म था कि आज वो अपने बाबा से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। उस मासूम बच्चे का इस दुनिया में बाबा के अलावा था भी कौन, और आज उसने उन्हें भी खो दिया। कैसर का जनाजा हो गया, वो हमेशा के लिए मनु मिट्टी तले सो गया। हर मुलाजिम यही कहता नजर आता कि हमने कैसर जैसा बावफा नहीं देखा। उसे जोया की मोहब्बत खींच ली गई, लेकिन सवाल ये था कि अनस के आंसू कौन पूछेगा, उसका सहारा कौन बनेगा। लेकिन सद अफसोस के अनस की यतीमी और बेचारगी ने उसका सारा बचपन ही छीन लिया। 10 दिन के बाद कैसर को मैंने बड़ी मुश्किल से स्कूल जाने के लिए राजी किया। उसे नाश्ता करवा कर खुद स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगी कि उसी वक्त बेगम साहिबा कमरे से निकल आई और बोली, कहाँ जा रही हो रेशमा? मैंने पलट कर देखा और बोली, बेगम साहिबा अनस को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। वो बोली, मैंने अपने कामों के लिए रखा है, इस बच्चे के कामों के लिए तुम्हें? मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे बेगम साहिबा से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, बेगम साहिबा बच्चा है इसलिए मैंने सोचा कि इसे छोड़। बेगम साहिबा ने मेरी बात काटते हुए कहा, आज से ये स्कूल नहीं जाएगा। ये सुनकर खनसमा भी किचन से निकल आए। वो भी हैरत से बेगम साहिबा को देख रहे थे। बेगम साहिबा खनसमा से कहने लगी, तस्लीम अंकल बच्चे को अपने साथ किचन के कामों में लगाएं, काम काज सिखाएं। खनसमा ने डरते डरते कहा, बेगम साहिबा आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अनस अभी बहुत छोटा है। बेगम साहिबा ने कहा, तस्लीम अंकल क्या आप भरेंगे मेरा नुकसान? आपको मालूम है इसकी माँ के इलाज पर कितने पैसे लगाए? अबे इसके बाप ने भी वो कर्जा नहीं उतारा कि वो भी चल बसा। चलो ये तो अल्लाह की तरफ से था, क्या कह सकते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसकी तालीम का बोझ भी मैं उठाऊं, क्योंकि मेरे घर पर पैसे दरख्तों पर लगे हैं। ये कहकर मालकिन कमरे में वापस चली गई। हम तीनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अनस अपना बैग मुझे पकड़ाते हुए बोला, खाला क्या आपको पता है बाबा ने इनसे कितने पैसे लिए थे? अनस की बात सुनकर तो जैसे मेरे दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। तस्लीम चचा ने अनस को गोद में उठा लिया और किचन में ले गए। तस्लीम चचा ने अनस को कुर्सी पर बिठाया और बोले, अनस बेटा तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अनस बोला, मैं कहानी नहीं सुनना चाहता, बस मुझे बताएं मैं कब बड़ा होऊंगा। मैंने किचन में झांकते हुए कहा, अच्छा तो तुम बड़े होकर क्या करोगे? अनस बोला, बेगम साहिबा का कर्ज अदा करूंगा। उसका जवाब सुनकर मैं और तस्लीम चचा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। यह गलत बात नहीं थी कि अनस बहुत ज़हीन बच्चा था, लेकिन अपनी ज़हानत के साथ वो इतनी जल्दी बड़ा भी हो जाएगा, हमें इसकी तवक्को नहीं थी। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत ना हुई कि अनस को स्कूल लेकर जाए। अनस सारा दिन कभी खनसमा चचा के साथ किचन के काम करवाता, तो कभी लॉन में मालिक के साथ, कभी गेट पर चौकीदार के साथ बैठकर खंटू गेट के बाहर देखता रहता। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो मैं अनस को बुलाने के लिए गेट पर पहुंची। वो टिकटिकी बांधे गेट के बाहर की तरफ देख रहा था। मैं करीब पहुंची और बोली, अनस बेटा आ जाओ, खाना खा लो, बाहर क्या देख रहे हो? वो बोला, खाला मैं देख रहा हूँ, क्या पता बाबा आ जाएं। मैंने अनस को गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगाकर बोली, अनस बेटा अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं तो क्या मेरे साथ चलोगे? वो बोला, हाँ मैं चलूँगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, सच? वो बोला, जी खाला सच। मैं उसे गोद में उठाए अंदर चल पड़ी और बोली, अच्छा तुम खाना खा लो, मैं बेगम साहिबा से पूछकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं उसे गोद में उठाए अंदर आई तो सामने बेगम साहिबा खड़ी थी।
वो मुझे गुस्से से देख रही थी। मैंने जल्दी से अनस को गोद से उतारा। बेगम साहिबा बोली, अनस, क्या तुम जल्दी बड़े होना चाहते हो? अनस बोला, जी बड़ी बेगम। बेगम साहिबा बोली, तो फिर जाकर मेरे कमरे की सफाई करो। अगर तुम रोज़ाना मेरे कमरे की सफाई करोगे तो जल्दी से बड़े हो जाओगे। ये सुनकर अनस ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं रोज़ाना आपके कमरे की सफाई करूँगा। ये कहकर अनस कमरे की तरफ भागा। मैं उसके पीछे जाने लगी तो बेगम साहिबा ने कहा, रेशमा, क्या बात है, तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? मैंने कहा, बेगम साहिबा, अभी वो बहुत छोटा है। वो बोली, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, तुम बड़ी हो, मैं बड़ी हो गई, देखो हम सब बड़े हो गए, वो भी बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, बेगम साहिबा, मैं अनस को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनते ही वो चिल्लाई, रेशमा, मैं कई दिन से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अगर अब भी ना समझी तो मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अपने काम से काम रखो, क्योंकि मेरे लिए नौकरों की कमी नहीं है। न जाने बेगम साहिबा इतनी सख्त दिल क्यों हो गई थी, या वो हमेशा से ही ऐसी थी। बहरहाल ये तो तय था कि वो अनस के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी नहीं रखती। मैं भी खामोशी से काम पर लग गई। अब मैं कोशिश करती कि बेगम साहिबा के सामने अनस से दूर ही रहूं। एक दिन अनस बेगम साहिबा के कमरे की सफाई कर रहा था। वो बच्चा सफाई ही कितनी करता, बस बिखरी चीजें समेट देता और अपने नन्हे हाथों से बिस्तर झाड़ देता। ये काम भी वो पूरे जोशो खरोश से इसलिए कर रहा था क्योंकि बकौल बेगम साहिबा काम करने से वो जल्दी बड़ा होगा। मैं बेगम साहिबा की अलमारी साफ कर रही थी कि अचानक बेगम साहिबा कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने अनस को बाजू से पकड़ा और चिल्लाई, अनस, तुम रोजाना मेरे कमरे की सफाई करते हो, मेरी दराज से सोने की अंगूठी कल से गायब है। ये कहकर बेगम साहिबा ने अनस को थप्पड़ मारा और झिंझोड़ते हुए बोली, बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है? मैंने कहा, बेगम साहिबा, वो मासूम बच्चा अंगूठी का क्या करेगा? वो गिरजी। खामोश रेशमा, तूने इसे सर चढ़ाया है। ये इतना मासूम नहीं है जितना नजर आता है। बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है? अनस रोने लग गया और बोला, मुझे नहीं मालूम बेगम साहिबा, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं करता। बेगम साहिबा ने उसे धक्का दिया और बोली, अनस, अगर मुझे मेरी अंगूठी तेरे पास से मिल गई तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि सब देखेंगे। ये कहकर वो कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अनस को उठाया। वो रोते हुए बोला, खाला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। 6 साल का अनस आज बहुत डरा सहमा था। मैंने उसे गले लगाया और चुप करवाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें अनस से इतनी चिढ़ क्यों है। थोड़ी देर बाद बमुश्किल मैंने उसे चुप करवाया। बेगम साहिबा घर से बाहर जा चुकी थी। बेगम साहिबा की छोटी बेटी अलिशबा आज घर पर थी। आजकल अलिशबा कॉलेज से बहुत छुट्टियां करने लगी। बेगम साहिबा को तो अपनी हाई सोसाइटी पार्टी से फुर्सत नहीं थी। मैं अनस को लेकर किचन में गई। तस्लीम चचा दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अनस को कुर्सी पर बिठाया तो तस्लीम चचा ने मुझे सब्जी की टोकरी पकड़ाते हुए कहा, मैंने सुन लिया है सब रेशमा, अल्लाह ही रहम करे। सब्जी के ये छिलके बाहर वाले डस्टबिन में डाल आओ। मैंने टोकरी पकड़ी और बाहर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम से निकले, साइड पर बेगम साहिबा की छोटी बेटी अलिशबा किसी से फोन पर बात कर रही थी। मगर जो मैंने सुना, मैं खामोशी से खड़ी रह गई और चुप कर बातें सुनने लगी। वो फोन पर किसी से कह रही थी कि मामा तो आजकल बहुत ही कंजूस हो गई हैं, इसलिए मैंने उनकी कल गोल्ड की अंगूठी निकाल ली है। तुम फिक्र न करो, मैं नाश्ता करके घर से निकल रही हूँ, फिर खूब एंजॉय करेंगे। ये सुनकर अलिशबा ने कहकर फोन बंद कर दिया। मैं तो दबे कदम जल्दी से अंदर आई। उसी लम्हे अलिशबा बीबी अंदर दाखिल हुई, मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने टोकरी उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, छोटी बीबी, मैं ये गंद बाहर वाले डस्टबिन में डालने जा रही थी। वो बोली, अच्छा ठीक है, तो जाओ और ये सब करके मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बेगम साहिबा से कैसे कहती? उन्होंने कौन सा मेरी बात का यकीन कर लेना था। चंद दिन बाद घर में एक बड़ी पार्टी थी। बड़े साहब को कारोबार में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। इसी खुशी में उन्होंने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए बड़ी दावत का एहतमाम किया था। आज सुबह से ही घर में दावत की तैयारियां चल रही थी। शाम का वक्त हुआ तो मेहमानों की आमद भी शुरू हो गई। लॉन में ही मेहमानों के खाने पीने और बैठने का एहतमाम किया गया। लॉन को ताज़ा फूलों से सजाया गया। सारे मेहमान आ गए। कुछ देर बाद बड़े साहब ने खाने का ऐलान किया। टेबल में खाना रखा जाने लगा। इतने में अनस लॉन में आया। उसने खाना प्लेट में डालने की कोशिश की
तो कौरमे से भरा डोंगा जमीन पर गिर पड़ा। करीबी एक औरत साड़ी पहने खड़ी थी। कौरमे के छींटे उसकी साड़ी पर पड़े। वो चिल्लाने लगी, अरे बदतमीज बच्चे, ये क्या किया तुमने? हाँ। उसी वक्त बेगम साहिबा वहां भागती चली आई। बेगम साहिबा ने अनस को थप्पड़ लगाया और बोली, अनस तुम यहाँ क्यों आए हो? अंदर खाना नहीं खा सकते थे? उसके बाद बेगम साहिबा ने उस औरत से कहा, बहुत माफ़ी चाहती हूँ मिसेस जमाली, बहुत माजरत खाऊं। ये कहकर बेगम साहिबा ने अनस को बाजू से पकड़ा और खींचती हुई अंदर ले गई। तुम चलो, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हो। मैं कुछ मेहमानों के सामने खाना पेश कर रही थी। थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा भी फारिग होकर बाहर आई तो अंदर की तरफ चल पड़ी। तस्लीम चचा किचन में बैठे हुए थे। मैंने कहा, चचा अनस कहाँ है? तस्लीम चचा ने कहा, उसे बेगम साहिबा ने उसके कमरे में बंद कर दिया और सख्ती से कहा कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मैंने कहा, बेगम साहिबा को क्या हो गया है? वो बोले, मुझे क्या मालूम बेटी। तकरीबन 2 घंटे बाद मेहमानों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। सारे मेहमान चले गए। बेगम साहिबा एक मुलाजिम को लॉन में कुछ हिदायत दे रही थी तो मैं अंदर आ गई। मैंने अनस के लिए खाना डाला और उसे ट्रे में रखा और उसी कमरे की तरफ चल पड़ी। उसी असना में बेगम साहिबा मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो गुस्से से मुझे देख रही थी। कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने डरते डरते कहा, वो बेगम साहिबा अनस के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। यह सुनने की देर थी कि बेगम साहिबा ने जोर से ट्रे पर हाथ मारा। मेरे हाथ से ट्रे दूर जा गिरी। बेगम साहिबा ने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरी तरफ किया अपना रुख और कहने लगी, अगर एक रात खाना नहीं खाएगा तो क्या वो मर जाएगा? तू अभी मुझे जानती नहीं है, ज्यादा उसकी माँ बनने की कोशिश मत कर, वरना ये भूल जाऊंगी कि तेरी 3 बेटियां हैं। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। ये कहकर बेगम साहिबा ने मेरी ठोड़ी छोड़ी और बोली कि चल सफाई कर, थोड़ी देर बाद आऊं तो हर चीज मुझे साफ नजर आनी चाहिए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं शाम होते ही घर चली जाती थी, लेकिन पार्टी की वजह से आज मुझे देर हो गई, इसलिए मैं बंगले पर ही रुक गई। सब लोगों के सो जाने के बाद मैं दबे पांव अनस के कमरे की तरफ चल पड़ी। मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कई बार सोचा यहाँ काम करना छोड़ लूं, लेकिन हर बार मुझे अनस की मासूमियत रोक लेती। उसका था भी कौन? मैं उसे अकेला कैसे छोड़कर चली जाती? मैं उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजे के अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुई कि वो किससे बातें कर रहा था। मैंने आहिस्ता से कमरे की कुंडी खोली, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अनस चारपाई पर बैठा था। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक सिसकियां ले रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके पास जाकर बैठ गई। खामोश थी मैं। उसे कहती भी तो क्या कहती। वो रोते हुए मुझसे लिपट गया। उसकी बेबसी देखकर मेरा दिल ज़ारो कतार रो रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू बहने लगे। थोड़ी देर तक वो रोता रहा, फिर बोला, खाला बाबा मुझे अकेला क्यों छोड़ गए हैं? कोई मेरा नहीं है। खाला मुझे बाबा के पास छोड़ आए, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे बाबा बहुत याद आते हैं। मुझे बाबा के पास जाना है। मैं अनस को गले से लगा कर रो पड़ी। इंसान अक्सर जुल्म करते हुए अपना मर्तबा भूल जाता है कि वह अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह ने उसे जुल्म करने के लिए नहीं बल्कि रहम करने के लिए पैदा किया है। उस दिन के बाद से अनस बहुत बुझा बुझा रहने लगा। यकीनन वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था। कद बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसी तरह हंसते रोते 2 साल बीत गए। अनस 8 साल का हो चुका था। जैसे ही वो 8 साल का हुआ, बेगम साहिबा ने उसके जिम्मे एक और काम लगा दिया कि वो पूरे घर के कपड़े इस्त्री किया करेगा। मैंने बेगम साहिबा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो भी इस्त्री करने के लिए बहुत छोटा है, उसे ये काम ना दें, कोई और काम दे दें। बेगम साहिबा को मनाने के लिए मैंने उनकी खुशामद तक कर डाली, लेकिन वो ना मानी। उन्होंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि करते करते खुद ही सीख जाएगा। मुझे डर था कि कहीं अनस को करंट न लग जाए, वो अपना हाथ न जला ले, या अगर कोई कपड़ा जल गया तो बेगम साहिबा ने अनस को बख्शना नहीं है। वो तो छोटी छोटी बातों पर उसे मारना शुरू कर देती है। अनस कपड़े इस्त्री कर रहा था, लेकिन उसने पहली बार में बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री किए। वो भी पिछले 2 साल में अच्छी तरह समझ चुका था कि उसके लिए माफ़ी वाला खाना नहीं है। शाम के वक्त मामूल के मुताबिक सब ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे, जबकि कमरे में बेगम साहिबा और अलिशा बीबी ऊंची ऊंची आवाज़ में कोई बहस मुबासा कर रही थी। बेगम साहिबा की बड़ी बेटी और बड़े साहब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे।
अलिशबा बीबी कहीं जाना चाह रही थी, लेकिन बेगम साहिबा उसकी बात नहीं मान रही थी कि बड़े साहब ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बेटा तुम जाओ अंदर, दोनों को चुप करवाओ, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। बड़ी बेटी कमरे की तरफ जाने लगी। उसी असना में बेगम साहिबा कमरे से ये कहते हुए बाहर आई कि बस जो कह दिया सो कह दिया। बेगम साहिबा जब सोफे पर बैठी और बोली, अनस मेरे लिए चाय ले आओ। अनस ने चाय ली और बेगम साहिबा की तरफ जाने लगा। अचानक अलिशबा बीबी कमरे से निकली। उसने अनस को जोर से टेबल की तरफ धक्का दिया। अनस चाय के कप समेत टेबल पर गिरा। कप टूट गया। टेबल के ऊपर शीशा लगा हुआ था। अनस के गिरने की वजह से टेबल का शीशा भी गिर गया, टूट गया। बेगम साहिबा उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, अलिशबा ये क्या बदतमीजी है। लेकिन अलिशबा हवा के घोड़े पर सवार घर के से बाहर निकल गई। बड़े साहब और तस्लीम चचा अनस की तरफ भागे। कांच लगने की वजह से अनस के बाजू से खून बहने लगा। बड़े साहब ने तस्लीम अंकल को कहा, अनस को कमरे में ले जाए और इसकी पट्टी करें। तस्लीम चचा अनस को लेकर कमरे में आ गए। चंद दिन बाद बड़े साहब ने कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना था। बड़ी बेटी बहुत काबिल थी। वो चाहते थे कि चूंकि अब बड़ी बेटी पढ़ाई से फारिग होने वाली है, इसीलिए उन्होंने बड़ी बेटी को कारोबार के मामलात में शरीक करना शुरू कर दिया था। बड़े साहब बड़ी बेटी के साथ 3 दिन के लिए मुल्क से बाहर चले गए। बेगम साहिबा ने 3 दिन के लिए मुझे बंगले पर ही रोक लिया। मैं अनस के साथ उसके कमरे में ही सोती। आज अनस के साथ उसके छोटे से कमरे में सोते हुए मुझे एहसास हुआ कि अनस कितना बहादुर बच्चा है। 8 साल की उम्र में वो इस कमरे में अकेला सोता है, तन्हाई काटता है। आधी रात का वक्त था। बेगम साहिबा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक बेगम साहिबा की आवाज आई, हसीना बेगम, हसीना बेगम उठ जाओ। बेगम साहिबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी ने हिलाया हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन इर्द गिर्द कोई नहीं था। अचानक उसे कमरे के बाहर से आवाज आई। हसीना बेगम साहिबा उठी और कमरे से बाहर आ गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे फिर से आवाज आई। इस बार आवाज बाहर से आई थी। वो बाहर की तरफ चल पड़ी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो वापस कमरे में आ गई। अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि कमरे की अलमारी से किसी के हंसने की आवाज आई। अलमारी में कौन है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। बेगम साहिबा ने जल्दी से अलमारी खोली, लेकिन अलमारी के अंदर कोई भी नहीं था। अभी वो अलमारी उसके अंदर देख ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। बेगम साहिबा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। न जाने बेगम साहिबा के उनको क्या सूझी। वो अनस के कमरे की तरफ चल पड़ी। बेगम साहिबा कमरे के पास पहुंची और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। मेरी अभी कुछ ही देर पहले आंख लगी थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। अनस भी जाग गया। बेगम साहिबा की आवाज आई, रेशमा दरवाजा खोलो जल्दी। मैं जल्दी से उठी। दरवाजा खोला तो बेगम साहिबा गुस्से से अंदर आई। शोर की आवाज सुनकर अनस भी बैठ चुका था। बेगम साहिबा ने अनस को खींचते हुए चारपाई से उतारा और बोली, नीचे उतर मनूस। मैं भी तेजी से अनस की तरफ बढ़ी और उसे पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ बेगम साहिबा? बेगम साहिबा चिल्लाई, रेशमा छोड़ इसे। बेगम साहिबा ने मुझे धक्का दिया। मैं चारपाई पर जा गिरी। बेगम साहिबा अनस को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। मैं उठी और बेगम साहिबा के पीछे भागी। बेगम साहिबा अनस को ये कहते हुए लेकर जा रही थी कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं बेगम साहिबा के पीछे मुसलसल ये कहते चले आ रही थी, बेगम साहिबा कुछ बताएं तो सही क्या हुआ है। लेकिन बेगम साहिबा अनस को लेकर किचन में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर से किचन का दरवाजा खटखटा रही थी। बेगम साहिबा क्या हुआ है, बताएं मुझे। कि बेगम साहिबा ने अनस को मारना शुरू कर दिया। वो अनस को ये कहकर मार रही थी कि बताओ मुझे क्यों हर वक्त तंग करते हो, जबकि अनस रो रो कर कह रहा था, बेगम साहिबा मैंने कुछ नहीं किया। इतने में शोर सुनकर तस्लीम चचा भी आ गए। मैंने कहा, चचा खुदा के लिए बेगम साहिबा को कहें कि दरवाजा खोलें और अनस को छोड़ दें, शायद वो आपकी बात मान ले। इसी दौरान अनस के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। मैंने कहा, चचा कुछ करें, खुदा का वास्ता है आपको। तभी चचा तस्लीम किचन के करीब आए। उन्होंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और बोले, बेगम साहिबा दरवाजा खोलें।
चंद लम्हों बाद बेगम साहिबा ने दरवाज़ा खोला और बोली, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैंने देखा अनस औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा था। तस्लीम चचा और मैंने उसे उठाया। अनस ने सिसकियां लेते हुए अपना बाजू मेरे सामने किया तो मेरी जान निकल गई। जालिम बेगम साहिबा ने मासूम बच्चे को छुरी गर्म करके बाजू पर 3 जगह जलाया था। अचानक अनस मेरी गोद में ही बेहोश हो गया। चचा तस्लीम बोले, रेशमा, इसे जल्दी से कमरे में लेकर चलो। हम अनस को लेकर कमरे में पहुंचे। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। चचा तस्लीम ने जली हुई जगह पर मरहम लगाया और पट्टी की। मैंने अनस से पूछने की कोशिश की, लेकिन चचा तस्लीम ने मुझे मना कर दिया कि फिलहाल खामोश रहो। अनस की सिसकियां थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी रात इसी तरह गुजर गई। कहीं फजर के वक्त अनस की आंख लगी और वो सो गया। मैं और तस्लीम चचा कमरे से बाहर आए। मैंने कहा, चचा, ये कैसा जुल्म है? अनस ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे पास सो रहा था। चचा तस्लीम बोले, मेरा ख्याल है बड़े साहब आ जाएं तो मैं उनसे बात करूंगा। मैंने कहा, चचा, खुदा के लिए आप बड़े साहब से बात करें। अगर बेगम साहिबा को अनस से इतनी ही नफरत है तो मेरे साथ भेज दें। लेकिन वो उसे मुझे भी नहीं ले जाने दे रही। चचा, ये तो जुल्म है, कुछ करें। चचा तस्लीम बोले, सब्र करो, जैसे ही साहब आते मैं उनसे बात करता हूँ। अनस इस तरह बुझ चुका था जैसे अंदर से मर चुका हो। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो खाली नजरों से बस खला को घूरता रहता। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यकीनन उसका इन हालात से जहनी सेहत पर बुरा असर पड़ा। आज 3 दिन मुकम्मल हुए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि बड़े साहब आ जाएंगे तो चचा तस्लीम उनसे बात करेंगे। वो इजाज़त दें तो मैं अनस को अपने साथ घर ले जाऊं। बेगम साहिबा ड्राइंग रूम में बैठी अखबार पढ़ रही थी। मगरिब हो चुकी थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। बेगम साहिबा ने फ़ोन उठाया। बड़े साहब की कॉल थी। बेगम साहिबा ने पहला सवाल ही यही किया, जी कब आ रहे हैं आप लोग? साहब ने कहा, हम चंद दिन मजीद रुकेंगे। बेगम साहिबा बोली, अरे वो क्यों? साहब बोले, हमारे बेटे भी चंद दिन के लिए घर आना चाहते हैं, इसलिए मैंने इरादा किया कि हम इकट्ठे ही आ जाएं। बेगम साहिबा बोली, अच्छा, ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन जल्द आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब से आप लोग गए घर सोना हो गया है। बड़े साहब ने कहा, हाँ हाँ, हम भी जल्दी आने की कोशिश में। थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा ने फ़ोन बंद कर दिया और बोली, रेशमा, साहब को कुछ दिन और लग जाएंगे, कल के खाने का एहतमाम मत करना। ये सुनते ही मेरा दिल बुझ गया। मेरी बेटियां भी घर पर अकेली थी। मैंने घर पर एक मुलाजिम से ही बेटियों को पैगाम भिजवाया कि वो कुछ दिन के लिए नानी के घर चली जाएं, ताकि मैं बेफिक्र रहूं। बेटियों ने नानी के घर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन किया तो मैं बेफिक्र हो गई। अब मैं बड़े साहब के घर आने तक मजीद कुछ दिन रुक सकती थी। इशा की नमाज के बाद में अनस के पास ही चारपाई पर लेट गई। बेचारे बच्चे ने 3-4 नवाले खाए और सो गया। तीसरा दिन था। अनस या तो सोता रहता या खाली नजरों से खला में घूरता रहता। रात के 11 बज रहे थे। अचानक बेगम साहिबा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उठी, उनके कमरे की तरफ भागी। मैं कमरे में पहुंची तो चचा तस्लीम भी वहां खड़े थे। बोले, रेशमा, खुदा जाने इस घर में क्या हो रहा है। उधर बेगम साहिबा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, बेगम साहिबा, दरवाज़ा खोलें, लेकिन बेसूद। चचा तस्लीम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। हम अंदर दाखिल हुए। बेगम साहिबा बेड के साइड टेबल से डरी नीचे सहमी बैठी थी। उनकी अलमारी को आग लग चुकी थी। चचा तस्लीम चिल्लाए, रेशमा, बीबी जी को बाहर ले आओ, मैं पानी लेकर आता हूँ, आग बुझाना है। मैं बेगम साहिबा को उठाने लगी, वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने बेगम साहिबा से कहा, उठ जाएं, कहीं कमरे में आग न फैल जाए। बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाकर बाहर लाई। इतने में तस्लीम चचा बाल्टी में पानी लेकर आए। वो थोड़ी देर में आग बुझाने में कामयाब हो गए। शुक्र था कि आग फैली नहीं, अलमारी तक महदूद रही। मैं बेगम साहिबा को दूसरे कमरे में ले आई। बेगम साहिबा ने बेड पर बैठते ही पूछा, अलिशबा कहाँ है? चचा तस्लीम बोले, अलिशबा बीबी तो अब तक घर ही नहीं आई। बेगम साहिबा चिल्लाई, ये आप क्या कह रहे हैं? वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही कमरे से निकली दरवाजे पर रुक गई और चिल्लाने लगी, अलिशबा, वहां ना जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। मैं और तस्लीम चचा ने बाहर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। बेगम साहिबा ड्राइंग रूम की तरफ भागने लगी। मैंने उन्हें पकड़ लिया और बोली, बेगम साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ कोई नहीं है। लेकिन वो चिल्लाई,
नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ो। तस्लीम अंकल देखें, वो मेरी बेटी को जला रही है, ना करो ये। कहते ही बेगम साहिबा बेहोश हो गई। चचा ने कहा, रेशमा बेगम साहिबा को जल्दी से कमरे में ले चलो, मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। बेगम साहिबा को कमरे में लेकर आई, उन्हें बिस्तर पर लेटाया। इतने में चचा कमरे में आए और कहने लगे, रेशमा डॉक्टर साहब आने वाले हैं, पानी लेकर आओ, शायद बीबी को होश आ जाए। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बेगम साहिबा को चेक किया और कहने लगे, खौफ की वजह से बेहोश हुई हैं, थोड़ी देर तक इन्हें होश आ जाएगा, फिक्र ना करें। डॉक्टर के जाने के बाद में और चचा तस्लीम ड्राइंग रूम में बैठ गए। रात का 1 बज रहा था। चचा बोले, रेशमा मैं आज से 25 साल पहले इस बंगले में आया था, लेकिन ऐसी अनहोनी नहीं देखी जो आज देख रहा हूँ। मैंने कहा, चचा मैंने भी बच्चों पर ऐसा जुल्म नहीं देखा जो यहाँ किया गया। तस्लीम चचा बोले, हाँ रेशमा बेटी तुम ठीक कह रही हो, बड़ी बीबी गुस्से की तेज जरूर है, लेकिन अनस के साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की। बेगम साहिबा के कानों से आवाज टकराई। हसीना बेगम। अपना नाम सुनते ही वो उठकर बैठ गई, लेकिन बेगम साहिबा की हैरत की इंतहा न रही जब एक जिनजादी उनके सामने खड़ी हुई। जिनजादी ने बेगम साहिबा के चेहरे की तरफ उंगली से इशारा किया तो बेगम साहिबा का सर जैसे पत्थर का हो गया। जिनजादी गरजी, मैं जिनजादी हूँ, जानती हो कि अगर मैंने तुझे हाथ लगाया तो तू जलकर मर जाएगी जालिम औरत। बेगम साहिबा उठना चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। इतने में देखते ही देखते उस जिनजादी की हमशक्ल एक नहीं कई जिनजादियां बेगम साहिबा के सामने नमूदार हुई। वो कुछ कर तो ना सकती थी, बस आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। जिनजादी बोली, आज के बाद तू जुल्म करने के लिए जिंदा नहीं बचेगी। ये कहकर जिनजादी ने अपनी उंगली हटाई तो बेगम साहिबा फिर से नॉर्मल हो गई। बेगम साहिबा ने चीख मारी तो जिनजादी ने कहका लगाया और बोली, इस कमरे से तेरी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, जितना चीखना है चीख ले। फिर बेगम साहिबा बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जिनजादी बोली, रुक जा खबीस औरत, तेरी बेटी हमारी कैद में है, जानती है। बेगम साहिबा ने मुड़कर देखा और बोली, क्या। जिनजादी ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया तो जर्द रंग की रोशनी पैदा हुई। उस रोशनी में अलिशबा बीबी नजर आ रही थी, वो बेहोश पड़ी थी। बेगम साहिबा चिल्लाई, मेरी बेटी को छोड़ दो, जो तुम कहोगी मैं करूंगी। जिनजादी बोली, ये अब हमेशा मेरे पास कैद रहेगी। ये कहकर जिनजादी गायब हुई। कहा जाता है कि बंगले के अंदर एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी। बेगम साहिबा के ससुर अपना ज़्यादा वक्त उस लाइब्रेरी में मुतालिया करते गुजारते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार रहने लगे। लाइब्रेरी से आवाज़ें आती जैसे वो किसी से बातें कर रहे हों। एक दिन अचानक उसी लाइब्रेरी में उनकी मौत हुई। हमसाए तो आज भी उन्हें याद करके बताते हैं कि वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अगर उनकी किसी के साथ जिद पर आ जाती तो पूरी दुश्मनी निभाते, बख्शते नहीं थे। उनके मरने के बाद तारिक अवान साहब ने उस लाइब्रेरी को ये कहकर ताला लगा दिया कि ये लाइब्रेरी मनूस है। बेगम साहिबा कमरे से निकली। हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, उन्हें अपनी तरफ आता देखकर खड़े हो गए। वो बोली, तस्लीम अंकल मुझे लाइब्रेरी की चाबी चाहिए। चाचा बोले, लेकिन बीबी जी वो क्यों। बेगम साहिबा ने कहा, सवाल मत करें अंकल, मुझे चाबी दे दें। चाचा ने कहा, ठीक है मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो कमरे में चले गए और थोड़ी देर में वो चाबी ले आए। उन्होंने बेगम साहिबा की तरफ चाबी बढ़ाई तो बेगम साहिबा ने जड़ से चाबी ले ली और लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी। मैं और तस्लीम चचा हम भी उनके पीछे लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े। वो लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी। बेगम साहिबा, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तस्लीम चचा ने भी दरवाज़ा खटखटाया। बीबी जी दरवाज़ा खोल दें, जिद ना करें। मैंने कहा, तस्लीम चचा अब क्या होगा, बड़े साहब आएंगे तो हमसे गिला करेंगे कि हमने बेगम साहिबा का ख्याल नहीं रखा। वो बोले, मैं क्या करूँ रेशमा बेटी, मैं खुद परेशान हूँ। अचानक कमरे से आवाज़ें आने लगी, कभी रोने की आती तो कभी कहके लगाने की आवाज़ें आती। रात के 2 बजने वाले थे, लेकिन बंगले में कोहराम मचा था। इतने में अनस अपने कमरे से उठकर आ गया। तस्लीम चचा बोले, अनस बेटा तुम कमरे में जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। अनस बोला, अभी अभी ख्वाब में बाबा मुझसे मिलने आए थे, कह रहे थे कि बड़ी मालकिन ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम उन्हें माफ़ कर दो। माफ़ करने वाले अल्लाह की नज़र में बहुत ऊंचे होते हैं। मासूम बच्चे की बातें सुनकर मैं और तस्लीम चचा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतने में अनस ने दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी बीबी दरवाज़ा खोले, मुझे आपसे बात करनी है। देखे मेरा ज़ख्म ठीक हो गया है। कुछ देर पहले जो कमरे से बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी, अचानक खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हम अंदर आ गए।
देखा तो बेगम साहिबा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। तस्लीम चचा ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल की। हम बेगम साहिबा को लेकर अस्पताल पहुंचे। उनकी नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आए और बोले, अब आपकी मालकिन खतरे से बाहर है, अल्लाह ने उन्हें दूसरी ज़िंदगी दी है। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अनस भी हमारे साथ था। बेगम साहिबा को होश आया तो उनकी जहनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। दिमाग के डॉक्टर को बुलाया गया। दिमाग के डॉक्टर ने मुकम्मल मायने के बाद बताया, खौफ और जुर्म के एहसास ने उनके दिमाग पर असर किया है, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। 4 दिन बेगम साहिबा अस्पताल में दाखिल रही। इस दौरान बड़े साहब भी अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आ गए। तस्लीम चचा ने तन्हाई में बड़े साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर ने बेगम साहिबा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया। हम घर आ गए। बड़े साहब ने लाइब्रेरी को एक बार फिर से ताला लगवा दिया और मुझे बोले, रेशमा, तुम अनस को रखना चाहती हो तो उसे अपने साथ घर ले जाओ, लेकिन उसकी तालीम और तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। उसके बाद बड़े साहब ने वो बंगला बेच दिया, क्योंकि उनके मुताबिक जब भी उस लाइब्रेरी को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की तब घर में कोई नुकसान हुआ, इसलिए बंगले को बेच देना वाहिद हल है। बड़े साहब ने दूसरा बंगला खरीदा और चंद ही दिन में फैमिली को लेकर वहाँ शिफ्ट कर गए। मैंने अनस को स्कूल में दाखिल करवा दिया। अनस 10 साल से मेरे पास रह रहा है। आज वो 10वीं क्लास में है और अपने स्कूल के ज़हीन बच्चों में से एक है। बड़े साहब अब तक उसके तमाम अखराजात उठा रहे हैं। मैं अब भी बंगले में काम कर रही हूँ। बेगम साहिबा उस वाक़े के बहुत अरसे बाद तक बीमार रही और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ वापस आई। हकीकत क्या है अल्लाह जानता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ गुनाह इतने संगीन होते हैं कि हम वो तो कर जाते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर उस गुनाह का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेगम साहिबा ने मासूम बच्चे पर जुल्म किए। एक दिन आया कि उनके ज़मीर ने भी उनके तमाम गुनाहों का बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।